Greetings, everyone. So, Haryana Public Service Commission has announced Haryana Judiciary examination for the year 2024 with a good number of seats. We will see how many and what are the bifurcation. I'm meeting you today to only discuss with you the few of the important points of the notification that you must always see, although you would have seen the notification by now, but still only to get in touch with you and connect with you that I am dealing with the same notification in this video. And I'll be coming up with another video with respect to the analysis of the previous year question, the last year question. I will discuss it with you so that you may be able to know that what kind of questions are asked and what is the approach by which you can always attempt these questions, how many factual questions are coming, how many conceptual questions are coming, so that you may be able to divert your strategy in a way that you are understanding the examination and preparing it properly. Near around you have 2 months, because tentatively the examination may be conducted on the first week of March. So you have 2 months to prepare. It's just the beginning of January. So you have a good deal of time to prepare for the examination, because the number of subjects that are asked are also very exhaustive. The list I will give you right away, that how many subjects are there, and also how many subjects are there in mains, how many type of papers are asked, because all those who have never prepared for mains and they are only looking forward for the preliminary, you must be aware of one thing, that even if you are qualifying preliminary would make no difference if you are not doing well for mains. So kindly be aware that whatever syllabus they are giving for mains should be prepared simultaneously. If you have to devote, then devote last 15 days before the date of examination for preliminary. The last 15 days should be totally dedicated towards the preparation of pre, because at that point of time you will revise all the subjects in a way that you have to cram all the facts that are there. So you may stop your mains preparation, which is mainly focused towards the content development. That means that you know the analysis of the sections are ready, the concepts are ready, you know what kind of questions are asked, how to attempt those questions, how to limit your time, answer writing, all these things if are to be done, then it should be done before 15 days previous from the date of preliminary examination. The last 15 days you can exclusively dedicate towards preliminary, but before that you have to simultaneously also prepare for mains, because they will not give you so much of time to prepare for mains afterwards. So kindly be aware of this fact. So understanding the syllabus of the mains and then working towards it is also very important for these 2 months. So don't consider that you need not prepare for mains at all. If your target is only to qualify pre, then you can always avoid it. But if your target is to get selected in the examination, you cannot avoid the preparation for mains, at least for now. I'm telling you, last 15 days are enough to revise and then to cram and then to dedicate exclusively for the preparation of preliminary. Otherwise, they both go simultaneously. You can say that you will devote more time for preliminary if you're not prepared for certain subjects. That is okay. But if you are prepared, if you have read it before, it is only the matter of revision, then you have to do more number of questions every day. Take out 100 questions every day and try to attempt those questions like a mock. Every day 100 questions. Take out and devote time to that. Although I tell you, if you have given Delhi Judicial Service examination, this question paper is comparatively easier, and you will be able to take care of all the questions properly in less time. 125 questions are only asked, although there is a negative marking, but I will tell you that why this will not make any difference or much difference, because in Delhi Judicial Services it does make difference. 1/3 marks are deducted, so it 1/4. So it actually the level of competition is quite high in Delhi Judicial Services. But in HJS, you will see that the question paper would be of such a nature that you will be able to attempt most of the questions if you are well versed with your factual and few of the conceptual clarities. So kindly be aware of this fact. Again, I'm telling you that you cannot avoid for not preparing for mains in these 2 months.
For DJS you got less time, that is why I did not mentioned it, I did not recommended that you must prepare for mains, because you got on not more than 20-25 days to do that. Again, because they extended the time, but still you had less time to prepare for preliminary in DJS. So in Haryana that is not the case. So you cannot just devote all the time preparing for pre. You may devote a good deal of time if you are not well versed with few subjects. We will see the list of subjects, you will be able to know that if you are not good in any of the subject, kindly devote time first in those subjects. And if you are then well versed with all the subjects, kindly revise them and prepare for mains, because if you will not get time for preparing for mains after you are qualified in preliminary, you will regret it. So if you do not want to regret, kindly don't do that. तो अब समझिए थोड़ा सा इस बात को कि प्री पे ही सारा ध्यान नहीं देना है, मेंस को साथ में लेके चलना है. मेंस पे भी आप 6-7 घंटे बिताएंगे, प्री पे भी आप कम से कम 6-7-10 घंटे बिता सकते हैं. 24 में से सिर्फ आपके पास 6 घंटे हैं सोने के लिए. खाना पीना आपका पढ़ते हुए भी हो सकता है, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है. आई थिंक आई हैव मेड माई पॉइंट. ठीक है जी, 6 घंटे 7 घंटे जो भी सोना है उतना ही. सर्दियां हैं तो आप ज्यादा नींद आ रही होगी, कट ऑफ योर स्लीप, यू कांट डू एनीथिंग. 2 महीना है, अच्छे से मेंस का और प्रीवी का देख लीजिए, और एंड के जो 15 दिन हैं वो जो डेट ऑफ प्रिलिमिनरी होगा उससे पहले एंड के जो 15 दिन होंगे वो आप एक्सक्लूसिवली प्रारंभिक परीक्षा के लिए डिवोट कर सकते हैं. हिंदी में भी बात समझ में आ गई होगी. ठीक है जी, अब जरा देख लेते हैं कि क्या HPSC ने क्या नोटिफिकेशन दिया है. सिलेबस भी देख लेंगे हम. 2023-24 लिख रहे हैं ये, वैसे 24 में ही जब नोटिफिकेशन आया ही है, तो एंजॉय कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन एक्चुअली इन्होंने पहले निकाल दिया. डजंट मैटर, आप दैट इज व्हाई दे आर राइटिंग 2023-24. डजंट मैटर, इट इज हैपनिंग इन 24, यू विल बी जज इन 24 ओनली. तो एप्लीकेशन जो है आपकी 5 जनवरी 2024 से खुल जाएगी. मैंने वेबसाइट आपको बताया, वेबसाइट इज HPSC, if I'm not wrong, hpsc.gov.in, hpsc.gov.in. इसी पे जाके आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, इसी पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना होगा. एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपके पास अभी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है 5 जनवरी. इन सबके स्कैन्ड इमेजेस तैयार रखनी है, स्कैन्ड इमेजेस. और ये स्कैन्ड इमेजेस भी आप मार्कशीट्स कौन कौन सी होंगी, खैर ये तो सबको पता ही है. 10th का, 12th का, आपका अंडर ग्रेजुएशन का, अगर आपने BLLB करी है तो उसका, और उसके बाद आपका LLB का जो भी कंसोलिडेट मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट होगा वो आपको रेडी रखना है. और अगर हो सके तो कंसोलिडेट मार्कशीट, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, कंसोलिडेट मार्कशीट और या फिर आपकी डिग्री, दोनों भी मांग सकते हैं या उनमें से एक भी काम कर जाएगा. कंसोलिडेट मार्कशीट अगर आपके पास है, डिग्री नहीं है, डजंट मैटर, आप कंसोलिडेट मार्कशीट को अपलोड करेंगे. तो आप ये सारे जो क्रेडेंशियल्स हैं जरा इनको तैयार रखिएगा. अगर आपका कोई वर्क एक्स है तो वर्क एक्स तैयार रखिएगा, उसका भी सर्टिफिकेट, ऑल्दो दे डोंट डिमांड दैट. मेनली आपको क्रेडेंशियल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है. तो आपका साइन डिजिटल और आपकी फोटोग्राफ और 10th 12th अंडर ग्रेजुएशन LLB का कंसोलिडेट मार्कशीट का स्कैन्ड इमेज एक तैयार रखिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ये सब आपको अपलोड करना होगा. और वो भी एक साइज जो है वो मिनिमम रखिएगा. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शुड नॉट गो मोर देन 25 MB, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में रिसीव नहीं हो पाएगा, सबमिट नहीं हो पाएगा. तो प्लीज ये काम पहले से करके रख लीजिए, जिससे कि 5 तारीख को जैसे ही आए एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत बच्चे बाद तक की वेट करते हैं, आपके पास बहुत बड़ा विंडो है. ऑलमोस्ट दे हैव गिवन यू 26 डेज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म. देखिए 31 जनवरी तक 2024 तक आपको टाइम दिया गया है. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 5 तारीख को ही बैठ जाएं और हैक कर दें पूरा. हैंग हो जाते हैं ना वेबसाइट्स, क्योंकि एकदम से नंबर ऑफ पीपल दे कम एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स. तो आप आराम से अपना फर्स्ट वीक में भी कर सकते हैं. 5 से शुरू हो रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ट्राई करिए कि आप इस पे ज़्यादा टाइम डिवोट ना करें, जितना जल्दी हो सके इसको एप्लीकेशन फॉर्म भर के अपना एक प्रिंट निकाल के एप्लीकेशन फॉर्म का अपने पास एक तसल्ली से बैठ जाएं, जिससे कि आपको ये टेंशन ना हो कि आगे
मेरे को अभी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और ये 3 दिन अभी भी आपको मिले हैं, तो इस 3 दिन में या 4 दिन जो भी हैं आपके पास, आप ये सब तैयारी करके रख लें, ठीक है, जिससे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रहें एक फाइल फोल्डर में। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उस फाइल से फटाफट निकाल लें। हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम 2024 करके एक फाइल बना लो, उसमें सारे ये डॉक्यूमेंट्स डाल दो। जैसे ही आपको रिट्रीव करना होगा फटाफट वहीं से एक ही जगह से रिट्रीव हो जाएगा, 10 जगह पे रखने की जरूरत नहीं है। यही तरीका है काम करने का। टेंटेटिव डेट फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज 3 मार्च, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आपका एग्जाम हो सकता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके पास 2 महीना है। Good 2 months you have. That is why all 2 months will not be dedicated towards only pre. खाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही सारा टाइम मत बर्बाद कर देना। प्री को भी टाइम देना है, मेंस को भी टाइम देना है। प्री और मेंस दोनों साथ चलेंगे। अगर आपकी डेट नोटिफाई हो गई कि 3 ही मार्च है, अभी टेंटेटिव है ना, तो जैसे ही फाइनल हो जाए कि 3 ही मार्च है, तो 3 मार्च से 15 दिन पहले आप भले ही मेंस की तैयारी छोड़ दें और सिर्फ प्री पे ध्यान दे दें, क्योंकि अब आपको बार बार रिवाइज करना है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि रोज 100 क्वेश्चन, 100 एमसीक्यूज अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो 6 घंटे 7 घंटे जो भी आप प्री में दे रहे हैं, सब्जेक्ट को रिवाइज करिए या फिर पढ़िए ढंग से, और 100 एमसीक्यूज साथ साथ लगाते रहिए। आप देख लेना कि 100% पेपर क्वालिफाई होगा। लेकिन मेंस को छोड़ना नहीं है, और मेंस की तैयारी मैं बता चुका हूं किस पर्सपेक्टिव पे होती है। नोट्स अपने रिवाइज करिए, सारे सेक्शंस की एनालिसिस दिमाग में प्रॉपर्ली होनी चाहिए। क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर में जो आए हैं, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं, उन क्वेश्चंस में क्या इशू बन रहे हैं, उनको कैसे लिखना है, इसकी तैयारी करिए। रोज आंसर राइटिंग भी करनी है। अगर 2 आंसर्स भी लोग रोज लिखते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप कहीं ना कहीं मेंस की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही प्री क्वालिफाई होगा, मतलब जब रिजल्ट आएगा तब तक वेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम दे के आएंगे प्री का, और अगले दिन से ही आपने मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि तब आपको फिर से रिवाइज और मॉक्स, रिवाइज मॉक्स, यही तरीका, और कोई तरीका ही नहीं है। टेंटेटिव डेट फॉर मेंस इज जून जुलाई, दैट मींस मार्च अप्रैल मई जून। आपको अच्छा 2-2.5 महीना मिल रहा है, 3 महीना मान के चलिए, 3 महीना मत मानिए, 2-2.5 महीना मान के चलिए, आपको 2.5 महीने मेंस के लिए मिल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप मेंस की तैयारी अभी शुरू में करते रहेंगे तो इस 2.5 महीने में आप कितना और स्ट्रांग कर लेंगे उस चीज को। हो सकता है कि मैं आपको अभी ये सजेस्ट करूं कि प्री के साथ साथ आप कोई नया सब्जेक्ट ना पढ़ो, या फिर अगर पढ़ना है तो अभी पढ़ो। अगर कोई नया सब्जेक्ट पढ़ना है तो अभी पढ़ लो। मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं आती, आपको हरियाणा रेंट कंट्रोल नहीं आता, अभी पढ़ लो जो भी सब सेक्शंस पढ़ने हैं उसमें से। या मान लीजिए आपको कस्टमरी लॉज नहीं पता, तो कस्टमरी लॉज अभी पढ़ लीजिए। ये टाइम है आपका मेंस के लिए उन सब्जेक्ट्स को डेडिकेट करने के लिए जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते, क्योंकि इन 2.5 महीनों में आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते। इन 2.5 महीनों में सिर्फ रिवीजन होगा, मॉक होंगे, रिवीजन होगा, मॉक होंगे। मतलब जो आपको आता है उसकी रिवीजन होगी। मान लीजिए आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो और आपने आंसर सही नहीं लिखा है, तो आंसर को असेसमेंट करने का और उसको चेंजेस लाने का, वहां ट्रेन करने का टाइम आपके पास कम से कम 2.5 महीने का है। तो आप एकदम हड़बड़ाहट में गलत नहीं करेंगे, आपके पास वक्त रहेगा तो शांति से आप वो वक्त दे पाएंगे। और फिर मेंस में आपने तब तो 15 से 18 घंटे लगाने ही हैं। 6 ही घंटे सोना है अभी अगले जुलाई तक आपने, अगर जज बनना है तो। ठीक है, जैसे ही जुलाई में एग्जाम, जून जुलाई जब भी होगा, जून में एग्जाम अगर जैसे ही हो जाए, उसके बाद आप 12 घंटे सो सकते हैं। अभी आप 6 घंटे ही सोइए। ठीक है, वाइवा वो उसके लिए कोई ऐसा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन सारी प्री और मेंस की है। तो 6 घंटे का शेड्यूल है आपका सोने का। 6 घंटे के अलावा जो भी टाइम बचा उसको शेड्यूल अप करिए फॉर द प्रिपरेशन। आई थिंक आई हैव मेड दिस वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो जो भी नया सब्जेक्ट पढ़ना है, या जो भी सब्जेक्ट आपको वीक लगता है, या आपको लगता है कि मेरा तैयार नहीं है, ये अभी इन 2 महीनों में होगा। प्री के साथ, प्री की तैयारी के साथ साथ 2.5 महीने पे ये बर्डन नहीं आएगा। 2.5 महीने पे सिर्फ एक ही बर्डन आएगा, रिवीजन एंड देन मॉक। रिवाइज करो, फिर से रिवाइज करो, क्वेश्चंस करते रहो। आई थिंक बहुत रिपीट हो गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 174 आई हैं, और 129 एक्चुअल है, 45 एंटिसिपेटेड। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू नो, सबको पता है कि क्या मतलब है इसका, एक्चुअल क्या है, एंटिसिपेटेड क्या है। आप मान के ही चलिए कि 174 पोस्ट हैं। 174 एक बहुत अच्छा नंबर दिया है, मतलब बड़ी अच्छी वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसीज बार बार आने की संभावना कमी होती है, एक अच्छा मौका है, अच्छी तैयारी करिए। फिर ये बाइफिकेशन दी गई है एक्चुअल वैकेंसीज की कि 77 जनरल के पास हैं, एससी की 30 सीटें हैं, बीसी, वहां पर बैकवर्ड क्लासेस की 2 कैटेगरीज है, ए एंड बी, उसमें 11 और 1 है। और फिर इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के 10 हैं, और उसके बाद कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की हैं जो कि आपकी उसी में से एडजस्ट होंगी।
ब्लाइंडनेस और लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और सेरेब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मल्टीपल डिसेबिलिटीज, सबको कुछ सीट दी गई हैं। टोटल 9 सीट्स हैं। ठीक है जी। उसके बाद जो एंटिसिपेटरी सीट्स हैं 45, उसमें क्या कैटेगरी है, उसमें क्या कैटेगरीज में बाइफिकेशन है? 24, एससी की 9, बीसीए की 6, बीसीबी की 2 और ईडब्ल्यूएस की 4। दैट मीन्स पिछली और ये मिला के टोटल 174 वैकेंसीज बन रही हैं। आपको खैर वैकेंसी से क्या लेना देना, जितनी भी हो आप टॉप रैंक्स पे काम करिए। योर प्रिपरेशन शुड नॉट लुक टू द वैकेंसीज, योर प्रिपरेशन शुड लुक टू द अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको जज बनना है, आप 10 सीटों में भी जज बनेंगे, 5 में भी बन जाएंगे। 174 हैं, तो कहीं अगर कमी रह गई होगी आपकी मेहनत में, मेहनत पूरी करनी है, लेकिन वहां तक पहुंचने में, टॉप रैंक्स तक पहुंचने में थोड़ी बहुत कमी रह गई, तो ये सीटें तब काम आ जाती हैं। हमारी क्या एटीट्यूड होती है, हम लोग देखते हैं कि कितना वैकेंसी आया, अच्छा 600 वैकेंसी आ गया, चलो आराम से, कोई नहीं, ज्यादा नहीं भी पढ़े तो क्या हो गया। पढ़ना रैंक्स के लिए है। देखो रैंक से फर्क पड़ता है। हो सकता है कि आप शायद ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, लास्ट रैंक हो या फर्स्ट रैंक, जज तो जज ही है। बिल्कुल सही बात है, जज जज ही है, सबके पावर्स एक ही हैं, सबने जज बन जाना है, सबको सेम इज्जत मिलेगी, हर चीज सेम ही होगी, कुछ नया नहीं है पर्क्स में, सैलरी भी वही मिलने वाली है आपको, सब कुछ सेम रहेगा। जब आप समाज में आएंगे तो प्रतिष्ठा भी आपकी वही है, जब बुलाए जाएंगे तब जज के नाम से ही बुलाए जाएंगे, तो कुछ नया नहीं है, कुछ अलग नहीं है। पर जो टॉप रैंक्स होती हैं उनको सीनियरिटी मिलती है। अब इस बारे में चर्चा मैं कभी और करूंगा। खैर मैं अभी यहाँ पर आपको बहुत कुछ इस बारे में बताने नहीं आया हूं कि हाउ द सीनियरिटी एंड हायरार्की वर्क्स, बट अंडरस्टैंड इफ यू आर वर्किंग फॉर टॉप रैंक्स, अगर आप फर्स्ट 10 फर्स्ट 20 में आने की दृढ़ निश्चय करके तैयारी करते हैं, थोड़ी बहुत भी अगर कमी पेशी हो जाती है तो आपका जज बनना तो तय हो ही जाता है। और अगर आप उस पर खरे उतर गए, मतलब आपने वो तैयारी को कंसिस्टेंटली रखा और वहां जाके सही परफॉर्म कर दिया, तो आपका रैंक सुनिश्चित हो जाएगा। और 1 2 3 को ही तो कैमरा मिल रहा है ना, खुद ही सोच के देखिए, ये कैमरे वाले सबसे पहले कहां दौड़ते हैं, किसका चला देते हैं चर्चा? काम टॉप के लिए ही करिए, उसमें अगर आप थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो एटलीस्ट जज बनना सुनिश्चित हो ही जाता है। ठीक है, इस बारे में फिर चर्चा करेंगे। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सबको पता है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन का एग्जाम आया है, सीनियर डिवीजन हायर जुडिशियल सर्विसेज का तो है नहीं, तो जूनियर डिवीजन के लिए आपको LLB होना चाहिए, मतलब बैचलर्स इन लॉ आपका कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, डिग्री ऑफ बैचलर्स ऑफ लॉ। और बैचलर ऑफ लॉ कहां से किया हो? एक यूनिवर्सिटी जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है, जिसको कानून ने एस्टैब्लिश किया है, ऐसे ही कहीं इधर उधर से नहीं करनी है, और अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको अप्रूव करना चाहिए। BCI रेगुलेटरी अथॉरिटी है एकेडमिक्स की भी, जहां तक लॉ की पढ़ाई की बात है वहां BCI रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो अगर BCI ने अप्रूव किया है, रिकॉग्नाइज किया है कि ये यूनिवर्सिटी लॉ का डिग्री दे सकती है, इनके पास करिकुलम हमने पहुंचा दिया, ये पूरा तरीके से ध्यान रख रहे हैं, उसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने LLB किया है तो आपने सिर्फ LLB किया है, सिर्फ डिग्री लिया है बैचलर ऑफ लॉ का, यही आपके लिए बहुत है। और कुछ चाहिए? देखो लिखा है एक्सप्रेशन, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ मींस अ डिग्री एंटाइटलिंग अ कैंडिडेट टू बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट अंडर एडवोकेट्स एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। देखिए ये सिर्फ ये कह रहा है कि डिग्री बैचलर ऑफ लॉ की वो होती है जिससे आपको एडवोकेट बनने में आसानी हो जाए। मतलब एडवोकेट्स एक्ट 1961 में आपको एडवोकेट का लाइसेंस लेने के लिए, टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट यू नीड अ लाइसेंस फ्रॉम द स्टेट बार काउंसिल। तो एडवोकेट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको अगर स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको LLB का डिग्री होना चाहिए। जिस तरीके से वहां लिखा है वही डिग्री हमें चाहिए यहाँ पर, और कुछ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एडवोकेट होने चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट एन एडवोकेट। बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर वो लाइसेंस नहीं है, क्या करें? फिर पूछते हैं सब मैसेजेस कर करके कि सर लाइसेंस नहीं है हमारे पास, मतलब एडवोकेट तो हम नहीं, हम तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो हमें बैठने नहीं देंगे। आप सिर्फ डिग्री लेके आइए, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। मेरी एक पहले वीडियो भी है जिसमें मैंने लॉयर और एडवोकेट के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। आप अगर सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हैं चल जाएगा, सिर्फ लॉ ग्रेजुएट हैं चल जाएगा। अगर आप एडवोकेट नहीं भी हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवोकेट बनने के लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है वो लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया कोई बात नहीं, आप सिर्फ LLB की डिग्री लेके आइए, यही तो वो बोल रहे हैं। ही होल्ड्स अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि आप एडवोकेट हो।
लेकिन एडवोकेट एक्ट में डिग्री ऑफ लॉ किसको बोला गया है? जिससे आपको लाइसेंस मिलता है, ऐसा डिग्री चाहिए। बस डिग्री आपकी वो होनी चाहिए जिससे कि कल अगर आपको हम लाइसेंस देने के लिए लेने के लिए बोले, ऐसा नहीं होता खैर, लेकिन मान लीजिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लाइसेंस लेने के लिए जाएं तो आप ये डिग्री दिखा के लाइसेंस आपको मिल सके एडवोकेट एक्ट के अंदर, उतना प्रूव कर दीजिए। लाइसेंस होना कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ अभी अभी क्वालिफाई करके निकले हैं अपना कोर्स, आपके पास कंसोलिडेट मार्कशीट आ चुकी है, आप पास हैं, डिग्री भले ही आपके पास ना आई हो, प्रोविजनल डिग्री उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो यूनिवर्सिटी आपको इश्यू कर देती है प्रोविजनल डिग्री। आप सिर्फ वो कंसोलिडेट मार्कशीट दिखा दीजिए हमें कि आप लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं। बाकी ये प्रमाण करना होगा, वो खुद भी देख लेंगे, वैसे ये प्रमाण करना होगा कि आपकी जो लॉ की डिग्री जहां से आपने ली है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, और जो आपकी डिग्री है उससे आपको लाइसेंस मिल सकता है, मतलब कोई रुकावट नहीं है, ये डिग्री एलिजिबल है लाइसेंस लेने के लिए। बस उतना प्रूव करना है। और अगर आप एडवोकेट हैं ही तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो मतलब आपका लाइसेंस है ही ना, इसका मतलब आप इसमें आप फॉलो ही करते होंगे। तो लाइसेंस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आगे कोई ज्यादा दिमाग मत लगाना कि सर वो एमपी में आ गया था, यहाँ ऐसा तो नहीं है। एमपी में 3 साल प्रैक्टिस मांग लिए थे, तो उसमें तो 3 years प्रैक्टिस मींस दैट यू मस्ट बी हैविंग द लाइसेंस टू प्रैक्टिस एंड देन यू हैव प्रैक्टिस्ड आफ्टर दैट फॉर 3 years। खैर वो तो सस्पेंड हो गया, मतलब इट हैज बीन स्टेड नाउ, बट नेवरदलेस यहाँ जरूरत नहीं है। एज कितनी होनी चाहिए? 21 to 42 ईयर्स। कितनी बढ़िया एज दी है, देखो किसी भी स्टेट में इतना एज विंडो नहीं देते। ऑलमोस्ट 21 ईयर्स आपको मिले हैं पूरे। 21 साल तक आप सिविल जज जूनियर डिवीजन के एग्जाम दे सकते हो हरियाणा में। कितना अच्छा दिया है देखो। व्हाट एल्स डू यू वांट? 42 साल कब तक होने चाहिए? 31/1/2024, मतलब इट शुड बी द लास्ट डेट ना। हाँ, क्लोजिंग डेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। जो लास्ट डेट है आपकी पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, तब तक अगर आप 42 साल के नहीं होते तो, मतलब अगर आप 42 साल के अगले दिन हो रहे हैं 1 फरवरी 2024 में, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका हैप्पी बर्थडे अगर 1 फरवरी 2024 को होता है और तब आप 42 साल के हो रहे हैं, तब भी आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 साल का मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम एज तो चलो बनता भी है ना, मैक्सिमम देखिए कितना दिया है, 42 तो कहीं भी नहीं होता, 35 होता है, 32 होता है, 35 से ऊपर नहीं देते। तो it's a good thing. For evidence of age, the candidate must furnish the matriculation certificate or equivalent academic certificate thereto at the time of main examination. वो तो पहले ही आपका 10 12 तो मांग ही रहे हैं ना, तो ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वहीं से आ जाएगा आपका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 125 और 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, विच इज 1/5 ऑफ द 20%, और यू में से 0.80, मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1.60 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे इसमें से। तो फिर जो बचा हुआ होगा वही मिलेगा आपको 6.40। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1.60 मार्क्स कम होंगे, और अगर 2 क्वेश्चन ठीक करेंगे तो 8 मार्क्स मिलेंगे। इस हिसाब से ये पूरा सिचुएशन बनाया गया है। क्लियर है? और टोटल ये आपका 5 4 20 और 2 मेरे ख्याल से 500 नंबर का आपका ये पेपर आ रहा है। तो 500 में से आप मान के चलिए मिनिमम अगर आप 400 ले आते हैं तो आपका भला हो जाएगा। तो 500 नंबर का पेपर है, अगर आप 400 ले आते हैं तो आपका भला, मतलब आप कट ऑफ से काफी आगे रहेंगे। वैसे इसका कट ऑफ अराउंड 360 to 80 के बीच में जाता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर पेपर, वैसे खैर पेपर की नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसा टेक्सचर है। पेपर थोड़ा सा टफ हुआ तो कट ऑफ और कम जा सकती है, और इजी हुआ तो कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो 360 to 80 के बीच में मान के चलिए, तो आप 390 400 पे सिक्योर हो जाते हैं। और अगर आप 400 प्लस हैं तो आप 100% सिक्योर हैं। क्या ही चाहिए ना, आप ऑलमोस्ट 75% तो कर ही रहे हैं क्लियर। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट 60-70% तो आप ला ही रहे हो ना, तो उससे उसके ऊपर जाने की संभावना कम ही होती है।
तो 400 प्लस अगर आप रहेंगे तो आपका थोड़ा भला ठीक रहेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग मैं आपको बता ही चुका हूं दैट नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/5 मार्क्स है। इसका मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.80 खत्म होगा। इसका मतलब अगर आपने 5 क्वेश्चंस गलत किए तो आपका एक क्वेश्चन का मार्क्स जो है खत्म हो जाएगा, मतलब 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत करने पे खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा लीनियंट है, पर आई विल टेल यू दैट ज्यादा फर्क नेगेटिव मार्किंग का इसमें नहीं पड़ता अनलेस कि आपने बहुत सारे नेगेटिव्स कर दिए हों। थोड़े से यहां पर तुक्के अटेम्प्ट करने का सिचुएशन है। हरियाणा पंजाब जब आप दोगे ना एग्जाम, दोनों स्टेट्स, तो थोड़े से तुक्के वहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। डीजेएस में मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। डीजेएस में कभी तुक्के मत मारो। डीजेएस में बस इतना सुनिश्चित करो कि एक तो आप 120 से ऊपर जा रहे हो क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग है, और 120 के आगे ये देखो कि अगर आप किसी चीज में बहुत श्योर हो तभी आगे जाइए, नहीं तो मत जाइए, क्योंकि आप क्वालिफाई तो कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर पेपर ऐसा है कि आपको ज्यादा नहीं आता है तो आप नेगेटिव करते करते 120 से भी नीचे चले जाएंगे। मान लीजिए कि अगर आप 125-30 तक आ ही रहे हैं तो क्यों आगे बढ़ना है, अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग करके क्यों पीछे जाना है। यहां पर कुछ जैसे 70-30 60-40 वाले क्वेश्चंस होते हैं ना कि 60% आई एम श्योर, 70%, कुछ क्वेश्चंस को आप गेस कर सकते हो। यहां एवेन्यू है, आई विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है, 125 क्वेश्चन 1 घंटे में खत्म हो जाते हैं। बहुत इलेबोरेट, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे आपने डीजेएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस देखी होगी, आई हैव गिवन यू 3 वीडियोस ऑन दैट, टेकिंग केयर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस माइनस द इंग्लिश क्वेश्चंस। तो मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं डीजेएस में। आप देखिए कि कैसा पेपर आया है, कैसे क्वेश्चंस आए हैं, कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाए, कैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी कैसे बना के दिया गया है। तो वो सब आप देखेंगे तो बहुत लेंदी पेपर हो जाता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और फिर उसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। यहाँ पर उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर लीनियंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी नेचर ऑफ द क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड। तो फैक्चुअल क्वेश्चंस भी बहुत रहते हैं, तो इसीलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जनरली क्या होता है, 1-1.5 घंटे में पेपर पूरा हो ही जाता है। तो इसलिए डोंट थिंक दैट 125 क्वेश्चन आप 2 घंटे में नहीं कर सकते। वहां पर 200 क्वेश्चन 2.5 घंटे में है। 200 क्वेश्चंस हैं और वो 2.5 आवर्स मिलते हैं आपको, और 200 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और 2.5 घंटे में ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो बहुत बड़े बड़े हैं, अगेन इज अ टास्क। दैट इज व्हाई दे गिव यू 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टू रीड द क्वेश्चन पेपर। तभी 15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं, ये नहीं देंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, लेट्स सी द सिलेबस। ये तो हर स्टेट में ही पूछा जाएगा ना, कुछ नया तो है नहीं। 1 आईपीसी पूछ रहे हैं और आईपीसी लिखा हुआ है, बीएनएस नहीं लिखा हुआ है। तो प्लीज इसमें मत पड़ जाना कि सर बीएनएस आएगा कि आईपीसी। एक वीडियो में शायद मैंने बताया भी है, आई डोंट नो दैट इफ इट हैज बीन टोल्ड टू यू और नॉट। देखिए, जब तक, एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक सिलेबस में बीएनएस लिख ना दें, बीएनएस नहीं आ रहा। अभी तक बीएनएस की कोई डेट भी नोटिफाई नहीं हुई है कि ये कब से लागू होगा। और बीएनएस का सेक्शन 1 पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि डिफरेंट डेट्स डिफरेंट प्रोविजंस के लिए भी हम डाल सकते हैं। तो जब तक वो सारे प्रोविजंस लागू ना हो जाए, बीएनएस को कैसे सिलेबस में डाला जाए। तो लागू तो हुआ नहीं है, प्रेसिडेंशियल एसेंट मिल गई है, एक्ट तो वो आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तो आपको बीएनएस ही पढ़ना है, पढ़ना आपको बीएनएसएस ही है। बीएनएस हो या बीएनएसएस हो या फिर बीएसए हो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये नया नाम हो गया ना आईपीसी का, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट इज बीएसए विच इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये नए नए नाम आ गए हैं, पर ये नए नाम इन्होंने तो नहीं लिखे, नोटिफिकेशन में पढ़ लो। क्लियर है ये बात? गिव मी अ मोमेंट। देखो मेरे सामने नोटिफिकेशन ही है, उसमें भी मेंस रिटन, मेंस एग्जामिनेशन और प्री के एग्जामिनेशन का सब लिखा हुआ है। जब मैं देख रहा हूं तो इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट ही लिखा है। इनको नहीं पता क्या बीएनएस आ गया, सब पता है इनको। पर इसी पर ध्यान दीजिए, जब तक लागू ना हो जाए तब तक कैसे पूछ लें। और इतना ध्यान तो कमीशन हमेशा रखेगी, जो भी एग्जाम ले रहा है आपका, इतना ध्यान तो वो हमेशा रखेंगे कि आप जो अभी तक इतना पढ़ते आ रहे हैं अपने कॉलेज में, उसके बाद तैयारी कर रहे होंगे 1-2 साल,
इतना जो पढ़ते आ रहे हैं, एक सेक्शन रटा आपने आईपीसी का, सीआरपीसी का, अब वो आपके दिमाग में इंग्रेडिएंट्स घूम रहे हैं उस तरीके से, ऑल्दो कंटेंट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, सेक्शन इधर उधर कर दिए हैं, पर इतने दिमाग जो आप लगा चुके हो, इतने साल से जो आप वो रट रहे हो, एकदम से आपका दिमाग कैसे बदल दिया जाए? इतना ध्यान तो कमीशन भी रखेगी, क्योंकि एग्जाम में ये पूछते हैं सेक्शंस। वकील और जज के लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो बीएनएस उठाएंगे और बोल देंगे भाई कहां पर है, ढूंढ लेंगे, बताएंगे अच्छा सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड है, पढ़िए। वकील के लिए दिक्कत नहीं है, वो बेट उठा के पढ़ देगा, वहां पर उसको रटी रटाई चीजें नहीं बतानी सेक्शन की, वहां पर वो सेक्शन देख के भी आपका तर्जुमा कर देगा, आपका ट्रांसलेशन, आपका एक इंटरप्रिटेशन कर देगा। लेकिन एक एस्पायरेंट के लिए दिक्कत है, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में वो क्वेश्चंस जब पूछते हैं तो दे एक्सपेक्ट कि यू राइट द सेक्शन एंड द इंग्रेडिएंट्स, तो आप सेक्शन लिखें, वो ये सेक्शन नंबर लिखने पे तवज्जो देते हैं, वो प्रेस करते हैं, प्रेशर डालते हैं, और प्री में पूछते भी हैं कि ये किस सेक्शन में है और इस सेक्शन में क्या है, तो एकदम से आप सेक्शन नहीं रट पाएंगे, ये उनको भी पता है। तो आप थोड़ा सा खुद सोचिए कि इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अब बीएनएस क्यों नहीं आया, बीएनएस तो नहीं पूछ लेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे बीएनएस या बीएनएसएस, कोई सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड नहीं पूछ रहा है, जब वो सिलेबस में ही नहीं लिख रहे हैं, आप वहीं से समझ लीजिए। आप आईपीसी से कंटिन्यू करिए, आप सीआरपीसी पढ़ने पे कंटिन्यू करिए, ये एग्जाम तो यही ऐसा ही रहेगा। और माइंड इट, ऑल्दो ऐसा मुझे कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आ रहा है, पर इतनी बात बहुत भली बात ही है कि एक साल मुझे नहीं लगता कि ये आपसे पूछेंगे बीएनएस और बीएनएसएस, क्योंकि वो धीरे धीरे आप में इनकलकेट होगा। एक साल वो आपको देंगे कि आप उन सेक्शंस पे स्विच कर जाएं, फिर वो आपसे पूछना शुरू करेंगे। और अगर उन्होंने स्पेशली डाल ही दिया अगर सिलेबस में तो बात अलग है, पर नहीं डालेंगे, जहां तक मुझे लगता है नहीं डालना भी चाहिए और नहीं डालेंगे भी, क्योंकि एक साल आपको स्विच करने में लगेगा, धीरे धीरे ट्रेनिंग होती है दिमाग की, धीरे धीरे स्विच होता है, क्योंकि आपको रटना है, इंग्रेडिएंट्स चेंज नहीं हो भले ही, लेकिन फिर भी आपको सेक्शंस नंबर रटने हैं, अगर बात समझ में आ रही हो तो इसलिए इन कंफ्यूजन्स में ना पड़े। यहां बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए नहीं लिखा है, यहां पर आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट लिखा है, वही सेक्शंस रटने हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, तो उन्हीं पे आपको तैयारी रखनी है। हाँ, एग्जाम के बाद धीरे धीरे आप बीएनएस के सेक्शंस रटो, अभी रटने की जरूरत नहीं है आपको, पता लगा 2 महीने आप सिर्फ बीएनएस के सेक्शन रटे जा रहे हो, इट इज गोइंग टू बी अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज डोंट डू दैट, दिस इज अ रिक्वेस्ट। तो आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, सीपीसी है, ये तो मेजर एक्ट्स आते ही है ना, ये तो चारों आने ही है हर जगह। उसके बाद पंजाब कोर्ट्स एक्ट है, ये नया है आपके लिए, तो अगर आपको ये पंजाब कोर्ट्स एक्ट एक्चुअली मेंस में भी आ सकता है, तो इसीलिए आपको ये कोर्ट्स एक्ट जो है अगर पढ़ना है तो अभी पढ़ लीजिए, मेंस के लिए भी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हर जगह ही आता है, पार्टनरशिप एक्ट हर जगह ही आता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हर जगह ही आता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हर जगह ही आता है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड एविक्शन एक्ट ये सिर्फ लोकल आएगा, मतलब सिर्फ हरियाणा के पेपर में आएगा, तो ये आप मेंस के लिए, ये मेंस में भी आएगा, तो ये आप प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ लो, अभी ही पढ़ लो, टाइम है आपके पास, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 सब्जेक्ट तो यही हो गए। फिर आपका कस्टमरी लॉ 11वां, ये मेंस में भी आएगा, तो अभी पढ़ लो। हिंदू लॉ ये तो सब जगह ही आता है, मोहम्मडन लॉ, फिर रजिस्ट्रेशन ये भी मोस्टली आ ही जाता है, लिमिटेशन ये भी आ जाता है, करंट अफेयर्स ये अलग है। देखिए 15 सब्जेक्ट्स तो लॉ के हैं, 15 लीगल सब्जेक्ट्स, 15 सब्जेक्ट तो लॉ के हैं, और फिर करंट अफेयर्स हो गया आपका ए, लीगल हिस्ट्री हो गया आपका बी, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया आपका सी। करंट अफेयर्स में वो आपसे कुछ भी करंट अफेयर्स का पूछ सकते हैं, इसका मतलब लीगल करंट अफेयर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर करंट अफेयर्स लीगल करंट अफेयर्स नहीं है, जैसे दिल्ली में आप पढ़ते हैं, दिल्ली में लीगल करंट अफेयर्स आते हैं, यहां पर एलसीए नहीं लिखा, एल वर्ड नहीं है, लीगल नहीं लिखा, यहां पर सिर्फ करंट अफेयर्स लिखा है। करंट अफेयर्स मतलब ये कुछ भी हो सकता है, करंट अफेयर्स का मतलब कुछ भी करंट से हो सकता है। आप इसमें पिछले 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने की कोई भी करंट की मैगजीन उठाइए और वहां से जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देख लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे आपसे डिस्कस करूंगा कितने क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, तो आप वो क्वेश्चंस कितने हद तक टाइम डिवोट करें वो भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अगर वो 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आपको आता है रोज आप आधा पौना घंटा अगर करंट अफेयर्स वैसे ही पढ़ सकते हैं, भाई कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, अगर देख सकते हैं किसी मैगजीन को वैसे ही, यू कैन फ्लिप द पेजेस एंड जस्ट सी दैट व्हाट इज हैपनिंग। क्या ही पूछेगा ना, क्रिकेट का पूछ सकता है आपसे, थोड़ा स्पोर्ट्स का, या फिर कोई नया कुछ इंट्रोड्यूस हुआ हो बीएनएस वगैरह, तो ये तो पता ही है आपको। कुछ मान लीजिए कोई पीएसएलवी, जीएसएलवी हुआ हो,
कुछ भी नया हुआ हो इस देश में, करंट तो समझते ही है ना आप, करंट में स्पोर्ट्स भी आ जाता है और आपका मनोरंजन भी आ जाता है, एंटरटेनमेंट वगैरह, और अवार्ड्स भी आ जाते हैं, हुज हु भी आ जाते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन करंट अफेयर्स। तो उनको अगर आप लेजरली पढ़ सको, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना क्योंकि उतने क्वेश्चंस नहीं आते, तो लेजरली पढ़ सको तो रोज इसमें आधा पौना घंटा आप दे सकते हैं, 1 घंटा दे सकते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। फिर लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजंस आए हैं नए, या फिर कोई जो केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो किन किन चर्चाओं पे हैं, क्या क्या रेशो है, उन सब के बारे में चर्चा करिए। और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जो कुछ स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई हैं वो भी पढ़िए, जैसे कि पुराना भी देखते रहिए कौन सा केस किस चीज पे था, वो भी देखते रहिए, लैंडमार्क केसेस कौन कौन से थे। लीगल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन लीगल हिस्ट्री में फिर वही आ जाएगा कि आपके जो लैंडमार्क केसेस रहे हैं वो कौन से हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पूछ सकते हैं, और पॉलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, और जो पुराने एक्ट्स आए थे उनके बारे में पूछ सकते हैं। जो पोस्ट प्री इंडिपेंडेंस जो हमारे पास लीगल हिस्ट्री थी उसके बारे में थोड़ी बहुत ब्रॉड फ्रेमवर्क ध्यान रखिए कि पहले आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर काउंसिल एक्ट्स आए, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, फिर मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड, फिर 1935, ये सब थोड़ा बहुत ब्रॉड ब्रॉड, बहुत डीप में नहीं, उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये 3 एवेन्यूज अलग हो गए, तो 15 लीगल सब्जेक्ट्स हैं प्लस 3 नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं। इन तीन टोटली आपको 18 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, और हम देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस के सब्जेक्ट से एक विंडो बना के देखेंगे कब नेक्स्ट वीडियो में, कि कितने सब्जेक्ट्स कितने क्वेश्चंस कितने सब्जेक्ट से आते हैं, तो आपको आइडिया भी लग जाए कि किस पे कितना ध्यान देना है। ऑल्दो आपको पढ़ना सब कुछ ही है, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे तो सही रहेगा। फिर आपका सिलेबस है मेंस का। मेंस में 5 रिटन एग्जामिनेशन होंगे, 1 वाइवा वोस अलग होता है, खैर 5 ही एग्जामिनेशन होंगे, 5 पेपर आएंगे। रिटन में कौन कौन से होंगे वो ऑब्वियस ही बात है, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, लैंग्वेज पेपर्स, ऐसा ही दिल्ली में पूछा जाता है। तो सिविल लॉ 1 में आपका आ गया सीपीसी, फिर पंजाब कोर्ट्स एक्ट, मैंने बताया था कि वो प्री में भी आएगा मेंस में भी आएगा, तो इसलिए अभी टाइम है कि कोर्ट्स एक्ट पढ़ लीजिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्री मेंस के लिए आएगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्री मेंस दोनों में आ रहा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्री मेंस दोनों में आ रहा है, एसआरए प्री मेंस दोनों में आ रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट प्री मेंस दोनों में आ रहा है, हरियाणा अर्बन कंट्रोल रेंट एंड एविक्शन एक्ट प्री मेंस दोनों में आ रहा है। इसका मतलब सब कुछ ये भी प्री में भी है और मेंस में भी है, यही प्री में भी है और मेंस में भी है। इसीलिए मैंने आपके जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो एक तरफ रखे 15 सब्जेक्ट्स, क्योंकि वो 3 नॉन कन्वेंशनल है, वो मेंस में नहीं आ रहे। जो करंट अफेयर्स, लीगल हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है, ये तीनों मेंस में नहीं आ रहे, तो इसलिए वो एबीसी। बाकी जितने 15 सब्जेक्ट्स हैं सबके सब आपको मेंस में भी आते दिखेंगे, इसलिए मेंस की तैयारी साथ साथ करना आपके लिए अनिवार्य है और आसान भी है। डीजेएस में क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मेंस में आते हैं जो प्री में नहीं आ रहे हैं, और प्री में 1-2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मेंस में नहीं आते, वहां थोड़ा सा आपको इधर उधर करना पड़ता है, पर यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा। हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ प्री मेंस दोनों में आ रहे थे, ये आपका 8वां सब्जेक्ट है। फिर ये 9वां देखिए, अभी दिख जाएगा आपको, कस्टमरी लॉ वहां प्री में भी आ रहा था और मेंस में भी आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका 10वां हो गया, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन, ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, 11 और 12। उसके बाद आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, एविडेंस दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि एविडेंस सिविल और क्रिमिनल दोनों में लगता है। तो क्रिमिनल में ये आपका 13, ये आपका 14, देखिए 14 के 14 सब्जेक्ट्स आएगा ना आपके। ठीक है, तो ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स आ ही गए हैं और सब रिपीट ही हो रहे हैं। क्लियर? फिर इनकी तैयारी जो आप साथ साथ कर सकते हैं प्री और मेंस में, उसके बाद इंग्लिश का पेपर होगा, फिर हिंदी का पेपर होगा। इंग्लिश में क्या पूछेंगे, एस्से, 100 मार्क्स का एस्से है, सबसे ज्यादा ध्यान आपको एस्से पे ही देना है। 200 मार्क्स में 50% जो आप स्कोर करोगे वो एस्से से करोगे। इसका मतलब आपको अभी टाइम है कि इंग्लिश की तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 200 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का क्रिमिनल लॉ, 200 नंबर का इंग्लिश। इसकी तैयारी तो आप ऐसे करोगे जैसे इसमें आपको अव्वल आना है, और इसकी तैयारी आप ऐसे करोगे जैसे कोई बात नहीं भी आए तो क्या होगा, 200 ही नंबर हैं दोनों के, और 200 marks here means that you have to score good, and this is the avenue where you can score good, even if here you are not writing so well, even if you are getting average marking here, if you are preparing good in English language paper, भाषा में अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, 100 में से 160 भी अगर आप ले आए, इसमें 200 में से 200 में से 160 भी अगर आप ले आए तो आपको बहुत बड़ा एज मिलेगा।
लॉ के पेपर में 100-200 में से अगर आपके 120 130 ऐसे भी आते हैं तब भी आप एक अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन वहां पर 150-60 में तो आप टॉपर हैं। यहाँ पर 160 जो है वो नॉर्मल है, 160-70 अगर आप ले आए तो आपको बहुत अच्छा एज मिलेगा। और उसमें भी सबसे ज्यादा किसमें लाने, सबसे ज्यादा किसमें भार है, वेटेज किसका है, एसए का। प्रेसी 25 नंबर और वर्ड्स एंड फ्रेजेस मेक सेंटेंस ऑफ गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस पर 25 मार्क्स। सी एसए नहीं, पूरा का पूरा आपका सारा का सारा जो कार्यभार है वो एसए ने उठा रखा है। अगर आप जितनी तैयारी एसए की करेंगे, 100 में से अगर मान लीजिए 80 आप एसए में ले आए, 20 ही मार्क्स आपके कम हुए, तो इन सब में अगर आपके 5-5 2-2 3-3 5-5 नंबर कम भी हो रहे होंगे, डजंट मैटर, 20 नंबर और कम होंगे, 160 फिर भी बन जाते हैं आपके। जितना ध्यान एसए पे दोगे, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, और एसए के लिए आपको कंटेंट डेवलपमेंट बहुत अच्छा करना पड़ता है, उसके बाद उसके फॉर्मेट में उसको लिखना जरूरी है, इसलिए इंग्लिश को ध्यान दीजिए और एसए पे ध्यान दीजिए। फिर प्रेसी राइटिंग आएगी, वर्ड्स एंड फ्रेजेस आएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन आएगा 25 नंबर का, और करेक्शंस आएंगे। तो इंग्लिश में भी आपको अच्छा खासा ध्यान देना है अभी से ही। जब भी आप तैयारी शुरू करेंगे, अंग्रेजी को इग्नोर मत कर दीजिए, जितना अंग्रेजी को इग्नोर करेंगे उतना ये पेपर आपको इग्नोर कर देगा। लैंग्वेज हिंदी जो है वो 100 मार्क्स की है, जिसमें फिर से हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में आ रही है। हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट लैंग्वेज पेपर शैल कंप्राइज द फॉलोइंग। ये एक्चुअली कोई पॉइंट नहीं है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में आएगी। ये बताया जा रहा है कि मतलब हिंदी को आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में रखना है, जो आपकी लिपि है। ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश पैसेज इनटू हिंदी, एक तो ट्रांसलेशन आएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, अनुवाद आएगा, जिसमें इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करना होगा। इंग्लिश टू हिंदी है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि आपको ये सीखना पड़ेगा कि अंग्रेजी से हिंदी में कैसे लिखा जाए। एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज इन प्रोज एंड पोएट्री इन सेम लैंग्वेज, 30 मार्क्स। ये 20 मार्क्स का है ट्रांसलेशन, 30 मार्क्स की आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ हिंदी पैसेज है। एक पैसेज दे देंगे, उसको एक्सप्लेन करिए और उसका बताइए कि क्या आपको समझ में आया उसको पढ़ के, और उसके बारे में व्याख्या कीजिए। फिर कॉम्पोजिशन एस्से, इडियम्स एंड करेक्शंस 50 नंबर का। ठीक है जी, एस्से आएगा एक छोटा, क्योंकि 50 नंबर का है तो छोटा ही एस्से आएगा, और इडियम्स आएंगे। मेनली एस्से अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि 50 नंबर में एस्से का इतना रोल है नहीं, क्योंकि इडियम्स और करेक्शंस भी हैं। तो आपके मुहावरे आ सकते हैं, आपको जो त्रुटियां हैं उनको रिमूव करने के लिए पूछ सकते हैं। तो ये आपका हिंदी का है, 100 नंबर का है। इसमें भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी कर ली ट्रांसलेशन की, और पैसेज को कैसे व्याख्या की जाती है, एक्सप्लेनेशन कैसे दिया जाता है उस चीज की, तो 100 में से अगर आप यहाँ पर 60 और 70 नंबर भी ला सके तो आप बहुत अच्छा एज ले जाएंगे। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ये 5 पेपर आएंगे आपके। ठीक है जी, लैंग्वेज पे खासा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा यही रेकमेंड करता हूँ दैट योर लैंग्वेज शुड स्कोर वे मोर देन योर लॉ पेपर्स, क्योंकि लॉ में क्या है ना, चीजें कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहती हैं, एवरेज मार्किंग हो सकती है, सब एक जैसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ रटे रटाया ज्ञान ऐसा होता है जो आपको आंसर में देना ही देना है। तो हमें नहीं पता कि आपने बेहतर कैसे कर दिया, अनलेस की योर एक्सप्रेशन वाज बेटर देन दी अदर, देन यू आर गेटिंग मोर एंड मोर मार्क्स टू बी अ टॉपर। बट अदरवाइज अगर आपने उतनी मेहनत भी नहीं करी कि आपका एक एक आंसर बहुत ही अच्छे से पिरोया गया हो, तब भी आपके जज बनने के चांसेस बने रहे, अगर आप लैंग्वेज पेपर में अच्छे से ध्यान दे दें तो। फिर वाइवा वोस होगा, वैसे इसकी जरूरत अभी नहीं है जब समझने की, अभी आप प्री और मेंस पे ध्यान दीजिए। जब वाइवा वोस आपका आ जाए तो आप संपर्क कर लें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से, आपका वाइवा वोस की प्रैक्टिस भी करा दी जाए, तभी आपको समझा देंगे कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। फिर आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी मिल जाएगी, और इंटरव्यू आपका मॉक करवा भी देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये चीज है ना, ये बहुत आसान है टेक केयर करना। ये जो 200 मार्क्स है ना वाइवा वोस के, इसमें कोई आपको अभी कोई मेहनत नहीं करनी, ये तो तब की बात है। जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कर जाएं, आप संपर्क में आ जाएं, उसके बाद आपको गाइडेंस भी मिल जाएगी, मॉक भी हो जाएंगे, और आपको दिख भी जाएगा कि आपने वहां पर कैसा परफॉर्म किया, और आपके जब मार्क्स आएंगे तो आप खुद उस चीज की सराहना कर लेंगे कि देखिए हमारा काम हो गया। तो इसकी अभी ऐसा जरूरत नहीं है। बाकी ये मैंने पिछला एक वीडियो है हरियाणा जुडिशरी का, उसमें डिस्कस किया हुआ है कि ये साफ साफ आपसे वाइवा वोस में क्या चाहते हैं, लिखा हुआ है, जज द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द कैंडिडेट। पर्सनल क्वालिटीज, हम आपके व्यक्तित्व का मंथन करना चाहते हैं, आपके आचरण, आपके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आपकी जो कानून या विधि की जो ज्ञान है उसके बारे में हमें अभी कोई
रिक्वायरमेंट नहीं है, पर इसके बारे में तब समझेंगे ना जब हम यहाँ पहुंच जाएं उसके, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जिसकी तैयारी आज से चाहिए, ये तैयारी हम 2 दिन पहले भी करा देंगे आपकी, डोंट वरी। मैं हाँ वाइवा से 2 दिन पहले, माइंड इट। ये सिर्फ माइंड को एक एस्पेक्ट देने का है और कुछ नहीं। जितना रिलैक्स रहोगे, जितना आप इस चीज को समझ जाएंगे, उतना आगे बढ़ जाएंगे। तो एज सच ये आपको देखने की जरूरत नहीं है अभी। देन देयर आर फ्यू पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल बी सब्जेक्टिव नैरेटिव टाइप। सीधी सी बात है, जो मेंस का आपका एग्जामिनेशन होगा वो सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब कि आपको अपने ही ढंग से अपना जो कॉन्सेप्ट, जो कॉमन कॉन्सेप्ट है वो समझाना होगा। ये सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैंने ये एक वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है। डीजीएस नोटिफिकेशन का एक वीडियो है यूट्यूब पे, दृष्टि जुडिशरी पे आप जाइए तो आपको दिख जाएगा। डीजीएस का नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है, इट्स अ 2 आवर लॉन्ग वीडियो। नॉट द डीजीएस नोटिफिकेशन ऑफ 2023, अभी जो रिसेंट आया वो नहीं, उससे पहले डिस्कस किया है मैंने पूरा नोटिफिकेशन ऑफ 2022 है शायद, जो मैंने डिस्कस किया है। वहां जाके देखिएगा, मैंने डिस्कस किया हुआ है व्हाट इज सब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव्स का क्या मायने होते हैं। ब्रीफली बता देता हूं। सब्जेक्टिव का मतलब कि आप एक्सप्लेन करिए अपनी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशन में आप क्या समझते हैं। मेंस एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश मीडियम एक्सेप्ट फॉर लैंग्वेज पेपर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या हिंदी में लिख सकते हैं। देखिए उन्होंने साफ साफ बोल दिया है, जो आपका माध्यम है आंसर लिखने का वो है अंग्रेजी माध्यम। इसका मतलब प्री का पेपर हो या मेंस का पेपर हो, आपको कोई हिंदी में क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, आपको अंग्रेजी में ही क्वेश्चन मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, अंग्रेजी में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो अंग्रेजी में ही उसको अटेम्प्ट करना है। जो भी लोग ये थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं कि सर हिंदी में बोलिए, देखिए मैंने डीजीएस का प्रीवियस क्वेश्चन जो एनालिसिस किया है जो अभी हुआ है 17 दिसंबर को, उसका जो एनालिसिस है वो पूरा अंग्रेजी में किया है, क्योंकि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज भी साफ साफ बोलता है कि अंग्रेजी ही हमारी जबान है, अंग्रेजी में ही हम सब कुछ मांग रहे हैं। तो आपको उतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए कि आप मेरी बात समझ सकें। इसीलिए मैं आज ये नोटिफिकेशन पूरा अंग्रेजी में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि हिंदी भाषी वाले भी सुन सकें। जिनको एटलीस्ट अंग्रेजी में लिखना आता हो वो पहले इसको समझ लें, उसके बाद अंग्रेजी पे ध्यान दे दें, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर भी है 200 नंबर का और अंग्रेजी ही माध्यम है आपका। तो अंग्रेजी तो आपने इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर नहीं है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, क्योंकि आपके ऑर्डर्स भी फिर इंग्लिश में आएंगे। तो आप खुद ही समझिए कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है। तो अंग्रेजी माध्यम ही रहेगा, हिंदी में आपको आपके उत्तर लिखने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। बेयर कॉपीज ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट शैल बी सप्लाइड। आपको बेयर कॉपीज मिलेंगी, मतलब बेयर एक्ट्स मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सबके बेयर एक्ट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, इमेजिन करिए कि अगर आपको बेयर एक्ट दे रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज थेफ्ट, तो आप क्या वो सेक्शन 378 देखना शुरू कर देंगे वहां से। सेक्शन 378 डिफाइंस थेफ्ट, दिस मीन्स दैट हुएवर दिस, और वो लिखना शुरू कर देंगे और आंसर छोड़ देंगे। कॉपी पेस्ट करने के लिए बेयर एक्ट नहीं दिया है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंग्रेडिएंट्स को याद रखें ना रखें, इंग्रेडिएंट्स वहां से देख लें, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को समझ जो है वो समझा दें हमें। क्योंकि इंग्रेडिएंट्स अगर आपको मुझे देने थे सिर्फ, या उसी से काम बन जाता, तो मैं बेयर कॉपीज देके क्या कर, बेयर कॉपीज मैंने कॉपी पेस्ट करने के लिए दिया है, चीटिंग कराने के लिए बेयर कॉपीज दी है। आइडिया समझिए। फिर नंबर कमाएंगे तो बोलते हैं कि सर हमने तो बेयर मिले थे, बढ़िया मजा आ गया, चिपका दिया सब नंबर, लेकिन नहीं है, नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि बेयर कॉपीज दिए हैं आपको इंग्रेडिएंट्स को रिकॉल कराने के लिए, कि अगर आपको सही में इंग्रेडिएंट्स नहीं भी याद तो देख लो, कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा देख लो, इलस्ट्रेशन याद नहीं आ रहा देख लो, उसे समझाओ, देख के समझाओ, मुझे कॉन्सेप्ट समझाइए। कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर्स हैं ये, ध्यान रखिए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गहन अध्ययन का स्टेटमेंट है। इसी से आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी मेंस के लिए। ईच रिटन पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। देखिए 3 दिन में आपके 5 पेपर होंगे, 2 एक दिन होंगे, 2 एक दिन होंगे और 1 एक दिन होगा। ऑब्वियस ही बात है, तो आपको 6 घंटे एक दिन, 6 घंटे एक दिन और 3 घंटे एक दिन लिखना होगा। आप समझते हैं 6 घंटे रोज लिखना, ये प्रैक्टिस करके देखना। जब आपको 2.5 महीने मिलेंगे मेंस की तैयारी के लिए, तो सुबह शाम बांध लेना अपना कि सुबह मुझे एक पेपर अटेम्प्ट करना है, 3 घंटे का लिखना है बैठ के एटलीस्ट, और कुछ नहीं तो लास्ट के 15 दिन तो ये जरूर करना। सुबह एक पेपर लिखना, शाम को एक पेपर लिखना, बीच में भले ही अपना पढ़ते रहना। सुबह एक पेपर, शाम को एक पेपर, सुबह उठते ही लिखना शुरू, रात को सोने से पहले एक पेपर लिख लो। 12 बजे सोते हो तो भैया अपना एक शेड्यूल बना लो कि 11:30 साढ़े 11 मुझे एक मॉक देना है। अगले दिन सुबह अगर 8 बजे उठते हो तो अपना शेड्यूल बना लो कि मुझे 9 से 12 एक मॉक पेपर देना है। उसके बीच में फिर अपना पढ़ना है, रिवाइज करना है। अगर आप ये कर लेते हो तो आप देखना कि ये 6 घंटे लिखना आपके लिए
एक कप ऑफ द टी हो जाएगा या वॉट एवर यू कॉल दैट। क्लियर है? इट विल बी अ केक वॉक देन। पर यह प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 6 घंटे एक दिन में लिखना और उस प्रेशर में लिखना ये आसान बात नहीं है। और सही लिखना, सारे क्वेश्चन सही भी हों, इसको सुनिश्चित करना एक बहुत ही गंभीर बात हो जाती है। और सारा तैयारी इसी पे डिपेंडेंट है। समझ गए जी? स्टैंड ऑफ लैंग्वेज पेपर शैल बी दैट ऑफ मैट्रिकुलेशन, इसका ज्यादा हमारा कोई रोल है नहीं। अगर आप ये सारी बातें समझ गए हैं तो ये पेपर आ गया आपके सामने। और अभी जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दे के हटे हैं, जिनको लगता है कि शायद वो नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हैं, 120 से नीचे हैं या फिर 130 से भी नीचे हैं, तो आप हरियाणा पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरे हिसाब से 130 to 35 जानी चाहिए कट ऑफ, बट इट मे गो above, it may go less. I cannot give you the final verdict, but yes, according, because with the feedback that I've got, मतलब जो मुझे जैसे पता चल रहे हैं मार्क्स कितने किसके आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। तो क्योंकि बच्चों ने स्कोर अच्छा किया है, और मे भी हो सकता है कि मुझे जो पूछ रहे हैं या मुझसे जो बता रहे हैं वो ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ लिए थे, बट डजेंट मैटर, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, सिलेबस हो गया आपका। और बाकी ऐसी तो कोई बात नहीं है जो मुझे आपसे और डिस्कस करनी चाहिए इसमें, क्योंकि बाकी सब तो बस वो कैटेगरीज एंड ऑल दोज थिंग्स इन दी नोटिफिकेशन। और 1000 रुपये आपको तैयार रखिएगा अपने अकाउंट में, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, एंड फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स, जो हरियाणा से नहीं हैं और रिजर्व कैटेगरी के भी हैं, सबको 1000 रुपया लगेगा। तो शुरू में आप ये अभी काम कर लीजिए, अपने अकाउंट में 1000 रुपये रखिए, और वो फोटोग्राफ्स वगैरह सब स्कैन करके एक ठीक ठाक साइज़ का, मतलब 10 to 25 MB के बीच में मेरे ख्याल से हर जगह एप्लीकेशन फॉर्म में एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, तो उतना आप साइज़ करके उसका तैयार रखिए, जिससे वो ब्लर्ड ना दिखे और सही साइज़ भी हो, फटाफट अपलोड हो जाए, एक ही बारी में आपका एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू हो जाए। ठीक है, बाकियों के लिए 250-250 रुपये है। और पर्सन फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे। और hpsc.gov.in पे जाइए, 5 तारीख को आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। और कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट इस नोटिफिकेशन में लग नहीं रहा। बढ़िया सीट चाहिए और अच्छा एवेन्यू है, सबके लिए बढ़िया है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड विद एप्लीकेशन फॉर्म, ये पॉइंट नंबर 31 है, मैं बता दूं आपको। नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 31, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे जा सकते हैं। और पेज नंबर 18 और 19, पेज 18 और 19, पॉइंट 31, पेज 18 और 19, पैरा 31 बोल लीजिए, आप पॉइंट 31 बोल लीजिए। इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार रखने हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर क्लेमिंग, वो सब लिखा हुआ है। स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, जो फोटो है, जो स्कैंड फोटो है वो ड्यूली साइंड बाय कैंडिडेट, मतलब अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो रखिए, उस पर सिग्नेचर मारिए और तब उसका स्कैन लीजिए। स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, खाली सिग्नेचर का भी स्कैन होना चाहिए आपके पास। तो सिग्नेचर मैंने शुरू में ही आपको बताया था ना, ये मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रहा साइन और फोटो। और ये मार्कशीट्स, साइन जो है वो आपका अलग से डिजिटली साइन होगा, फोटोग्राफ में भी आप साइन करके तब स्कैन करेंगे, अदरवाइज दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यहीं पे लिख देता हूं फिर से, पॉइंट नंबर 31, पेज 18 and 19 ऑफ नोटिफिकेशन। Scanned photo duly signed by candidate, scanned signature of candidate, scanned copies of degrees and mark sheet of educational qualifications, 10th 12th LLB अंडर ग्रेजुएशन, ये LLM भी किया है तो सबकी मार्कशीट्स कंसोलिडेटेड और डिग्रीज। स्कैंड कॉपी ऑफ SC सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसकी स्कैंड कॉपी। उसके बाद सिर्फ यही लिखा हुआ है कि आपके जो भी आप क्लेम कर रहे हो रिजर्वेशन, मान लीजिए BCA सर्टिफिकेट, BCB सर्टिफिकेट, SC EWS सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद स्कैंड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ये सबके लिए नॉर्मल हो जाएगा, सबको आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी भी रखनी है, आधार कार्ड की स्कैंड कॉपी भी होनी चाहिए।
आधार कार्ड का भी सबको ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। देन स्कैन कॉपी ऑफ परिवार पहचान पत्र इफ कैंडिडेट अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। परिवार चलो ये सब वो हो गया, बहुत पर्टिकुलर हो गया जब आप कोई कैटेगरी में हैं या फिर कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। स्कैन कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप हरियाणा में रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो हरियाणा में रहते भी होंगे ना, तो वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। बस उसके अलावा और कोई ज़रूरत नहीं है। स्कैन कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं जिसने साइन किया हो बॉन्ड कोई, तो आप एनओसी लेके आइए डिपार्टमेंट से। स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्कड ऑन एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क चार्ज डेली बेसिस इन डिपार्टमेंट बोर्ड कॉर्पोरेशन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। ये देख लीजिए जो भी आप पे एप्लीकेबल है उसका एक सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना ही करना होगा। जनरली आपको क्या चाहिए वो आपके सामने है, साइन, सिग्नेचर की स्कैनिंग, फोटो पे साइन करके उसका स्कैन, मार्कशीट्स एंड डिग्रीज, एंड देन आधार कार्ड। ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है नोटिफिकेशन में। धन्यवाद आज के लिए बहुत बहुत। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे ही दी है जो अब आई है, और जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, एंड आई विल कम अप विद अ वीडियो टू डिस्कस विद यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखते हैं ना कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। इफ नीड बी वी विल सी दैट व्हाट एल्स वी कैन डू। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, सी यू अगेन।